प्राइसिंग अगर आपको आता है, आपका सेल्स बढ़ जाता है, प्रॉफिट क्रिएट हो जाता है। प्राइसिंग अगर आपको आता है, आपका सेल्स बढ़ जाता है, प्रॉफिट क्रिएट हो जाता है। प्राइसिंग 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइसिंग, वाई प्राइसिंग, वाई प्राइसिंग, वाई प्राइसिंग? बिकॉज प्राइसिंग इज द डिटर्मिनेबल फैक्टर, बिकॉज pricing is the make it or a break it factors of your product or service, because pricing is helping you to create the tremendous opportunities in your business, because pricing is helping you to create the larger customer base in your business, because pricing is creating the larger revenue and profitability in your business. Why pricing? Why pricing? Because of these all रीजंस, ये सारे रीजंस की वजह से प्राइसिंग जरूरी है। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग कैसे करते हैं, इससे आपका सेल्स निर्भर करता है, इससे आपकी प्रॉफिट निर्भर करती है। एंड while you are doing the pricings and if you are not able to create the sales and profit, then there is no any meaning of that pricing, there is no any meaning of that pricings. Pricing is important because pricing is the determinable factors of your sales and profit is the end goal of your business. जब आप धंधा में है, बिजनेस में है, व्यापारी में है, आपका एंड गोल क्या होता है? प्रॉफिट क्रिएट करना, प्रॉफिट क्रिएट करना। एंड हाउ यू वुड बी एबल टू क्रिएट द प्रॉफिट? How you would be able to create the profit when you do not have the right pricing? Is it possible? Is it possible to create the right profit without having the right pricing strategy, without having the right pricing methods? I don't think so. So this is an important lesson for the entrepreneur and the business owner. कैसे आप अपने प्राइसिंग को सेट करें और क्यों प्राइसिंग सेट करें, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको क्यों और कैसे का रीजंस पता चल जाएगा, आपकी प्राइसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये क्यों और कैसे का रीजंस आपको पता होना जरूरी है। प्राइसिंग क्यों जरूरी है? एज आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू क्रिएट द गुड सेल्स एंड गुड प्रॉफिट एंड गुड कस्टमर बेस। फॉर दैट यू नीड ए प्राइसिंग। नाउ हाउ टू क्रिएट द प्राइसिंग्स? There are different methods of creating the pricing. There are different methods जो कि आप यूज कर सकते हैं प्राइसिंग्स को क्रिएट करने में, और प्राइसिंग्स के बेसिस पे आप अपने रेवेन्यूज के एंड प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में। There are different types of method that we have, like penetration pricing, skimming pricing, high-low pricing, premium pricing, psychological pricing, bundle pricing, competitive pricing, cost plus pricing, dynamic pricing, economic pricing, freemium pricing, loss leader pricing, retail pricing, so many pricing that we have. ये सारे प्राइसिंग मेथड्स हैं। ये सारे प्राइसिंग मेथड्स आप अपने प्राइसिंग्स में यूज कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉफिट इज द कंसर्न। प्रॉफिट इज द कंसर्न that how you are going to create the tremendous opportunity and creating more profit in your business, how you are going to create more customer base. And do you find that you would be able to create more customer base if you do not have the right pricing strategy? Do you able to find that? It is important. You have to check with your competitor pricings. If you are in a same line of business, if you are in a similar line of business, similar kind of product or service that we have, so you have to check in that case that what is the cost that competitors are charging from the customer. What are the price that competitors are charging? What are the offers that competitors are giving to the customer? You have to genuinely see these all, because this is again depend on you that how you are going to create the larger opportunity with the help of the right pricings. And when you have the competitor pricings, when you have the compatible pricings, you would be able to generate this. You would be able to generate this. This is important, because while you are going to see and find out the response of the customer and you are charging overpriced and your customer is not giving the response you, even though you have a supreme quality of product or service, even though you have a supreme quality of product or service, your customer will not entertain you because you have the overprice. So overprice is like a theme. And if you have the underprice, then what happen in that case, that might be customer will have a confusion that why this product or service price is too lower. Is it because there are some fault in the product or service? Or might be because you wanted to create more sales, you have kept the lower price, and because of that lower price you are not able to create the good profit, and because of you have the lower profit, and because of more costing that you have,
you are not able to sustain your business, or eventually your business will be shut down. Eventually your business will be shut down. That is important. So simultaneously you have to take care about your business, how to drive and to be able to create the larger opportunity, good profit in your business. Overpricing is a theme, underpricing is a cancer. ओवरप्राइसिंग इज ए अफीम, अंडर प्राइसिंग इज ए कैंसर. वो अगर ओवर प्राइस चार्ज करते हैं एक तरह का अफीम है, अंडर प्राइस चार्ज करते एक तरह का कैंसर. आपको दोनों में ही आपको बर्बादी है, दोनों में आपका बिजनेस जो है बर्बाद हो जाएगा. ओवर प्राइसिंग में आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, फिक्स कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, बिजनेस और डाउन की पोजीशन पर पहुंच जाएगा. अंडर प्राइसिंग करेंगे, आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप उस कॉस्टिंग के ऊपर इतनी बाहर आ जाएगी कि आप बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे. उस स्थिति में भी आपको बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा. तो ओवर प्राइसिंग में भी बिजनेस शट डाउन, अंडर प्राइसिंग में बिजनेस शट डाउन, अफीम एंड देन कैंसर. इट इज इंपॉर्टेंट द मीट कॉम्पिटिटिबल प्राइस. आप जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस में डील करते हैं उसका प्राइसिंग आपका कॉम्पिटिटर क्या चार्ज करता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. द 2 to 5% द वेरिएशंस विद द कॉम्पिटिटर प्राइस, there is no big issue. There is no big issue. You might be have a good chance to get more customer. You might be to win more customer. कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर का रिस्पॉन्स, कस्टमर की एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू ड्राइव द मोर अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस. तो कस्टमर का रिस्पॉन्स फीडबैक लीजिए, देखिए कि प्राइसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर चाहता है, किस प्राइस पे कस्टमर चाहता है, वेदर दैट प्राइस इज बेस्ट फॉर यू टू बी एबल टू ड्राइव दैट बिजनेस विद दैट कस्टमर. ये आपको देखना पड़ेगा. कभी कभी क्या होता है कि आपको बिजनेस के डिसीजंस लेने होते हैं. यू वुड हैव द फिक्स्ड कॉस्ट एंड फॉर रनिंग ऑफ मेंटेनिंग दिस फिक्स्ड कॉस्ट आप अगर लोअर प्रॉफिट पे भी उठा लेते हैं तो आपको साथ में ये ध्यान देना होता है कि कुछ ऐसे कस्टमर आपके पास हो जो कि आपके कॉम्पिटिटिबल प्राइस के अंदर हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बिजनेस है, आप फिक्स कॉस्ट रन कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, बिक नहीं पा रही है. उस स्थिति में अगर आप उसको लोअर प्राइस पे भी बेचते हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू पिच विद सम अदर कस्टमर विद द कॉम्पिटिटिबल प्राइस, एंड धीमे धीमे जो लोअर प्राइस वाला है उसको भी साल भर 2 साल भर में आप उसको कॉम्पिटिटिबल प्राइस में ला सकते हैं. ये बिजनेस के टेक्निक्स है दैट यू हैव टू यूज इन योर बिजनेस. बिजनेस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, एंड दैट सिनेरियो एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट. That scenario analysis is more important. So the overpricing is a theme, underpricing is a cancer, mid-pricing that you must have a competitive pricing, and that competitive pricing is helping you to build up the right opportunities in your business to be able to create more customer base with the help of customer experience and providing the right opportunities. राइट सर्विस डिलीवरेबल, राइट प्रोडक्ट डिलीवरेबल. अगर आप ये सारे करते हैं, कस्टमर के माइंड में गुडविल और इमेज क्रिएट कर पाते हैं, और जब कस्टमर के माइंड में गुडविल और इमेज क्रिएट कर पाते हैं, आपका वो प्राइम कस्टमर बन जाता है, परमानेंट कस्टमर बन जाता है. इट इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाइल यू आर इन अ स्टार्टअप बिजनेस यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द why pricing. While you are in a SME business, you have to understand the concept of why pricing. While you are in a MSME business, you have to understand the concept of why pricing. जब आप इस why को समझ लेंगे ना, आपकी आधी प्राइसिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. आपकी आधी प्राइसिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सारे एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिस ऑल आर द मार्केट एक्सपीरियंस दैट यू कैन यूज ऑल्सो इन योर बिजनेस टू बी एबल टू डेवलप मोर रेवेन्यू एंड मोर ग्रोथ. इट इज इंपॉर्टेंट. सो प्राइसिंग क्यों जरूरी है? दैट आई हैव एक्सप्लोर यू बिकॉज यू नीड a good amount of revenue, you need a good amount of profitability, and for getting the good amount of revenue and profitability you must have a competitive pricings. You must have a competitive pricing. उसको आप यूज कीजिए, प्राइसिंग के बेसिस पर कस्टमर का एक्सपीरियंस लीजिए, कस्टमर का बेस बनाइए. जब मोर से मोर कस्टमर ऐड होगा, आपके रेवेन्यूज बढ़ेंगे. जब आपका रेवेन्यूज बढ़ेगा विद द सेट ऑफ द कॉस्ट, ए स्ट्रीमलाइन ऑफ द कॉस्ट, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, उसके ऊपर का जो आपका रेवेन्यू आ रहा है वो आपके लिए बल्ले बल्ले आपको प्रॉफिट बन रहा है. प्रॉफिट में ऐड करते जा रहे हैं, उस प्रॉफिट को फिर अगेन इन्वेस्ट करते हैं, कंपाउंडिंग प्रॉफिट बेनिफिट आप उठाते हैं. यही तो सर्कल है बिजनेस का, इसको आपको यूज करना है. और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके पास
ग्रेट प्राइसिंग है। प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में, प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड दैट आई एक्सप्लोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, दैट दिस मेथड यू कैन यूज इन योर बिजनेस। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, हाई लो प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, ब्ला ब्ला, बहुत सारे प्राइसिंग है जो आपको यूज करना है। कौन से प्राइसिंग किस समय कहां पे कैसे यूज करना है, दैट यू एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर मस्ट नो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, सर्विस बिजनेस में, रिटेल बिजनेस में, आईटी बिजनेस में, एफएमसी, किस तरह का बिजनेस में, उस बिजनेस के पैटर्न के बेसिस पे प्राइसिंग को आप अप्लाई कीजिए, कस्टमर को कन्विंस कीजिए, कस्टमर को फाइंड आउट करना शुरू कीजिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हाइल यू आर गोइंग टू क्रिएट द प्राइसिंग, व्हाट आर दोज स्टेप्स, कैसे क्रिएट करेंगे प्राइसिंग, सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा, अपने बिजनेस के वैल्यूज को समझना पड़ेगा, अपने बिजनेस के सेगमेंटेशंस को समझना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजिक बनाइए। जब प्राइसिंग स्ट्रैटेजिक बन जाता है, देन अगेन स्टार्ट टू फाइंड आउट द डिमांड्स ऑफ द ऑडियंस, डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का क्या डिमांड है, उसके पास जाइए, समझिए, देखिए कस्टमर का क्या डिमांड है, व्हाट इज योर प्रोडक्ट और सर्विस, वेदर योर प्रोडक्ट और सर्विस इज हेल्पिंग टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कस्टमर और नॉट। इफ द product or service is not able to fulfill the demand of the customer, find out into the new market, finding out the new customer जिनको ये product और service की जरूरत है, find out the customer of the similar line of the competitors जो उनके पास है, उनके कस्टमर क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। You have to enter in the shoes of the customer, inquire about the product or service, find out the willingness, find out the desiredness of the customer कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए। That is important. And while you are able to amplify the opportunity through the help of this all, you'll have the great opportunity. यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कस्टमर के शूज में इंटर करना है, कस्टमर के बारे में पूरी जाननी है, कस्टमर कैसा है, कहाँ पे रहता है, कब बैठता है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कब किस चीज़ की उसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड बेसिस ऑफ दैट व्हेन यू स्टार्ट टू इंक्वायर अबाउट द कस्टमर, माइट बी यू हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग मोर डील विद द कस्टमर। यही तो आपको करना है बिजनेस में, फाइंडिंग आउट द कस्टमर डिमांड, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। जब कस्टमर के डिमांड आपको पता चल जाता है, तब कॉस्ट का एनालिसिस कीजिए, अपने कॉस्ट का एनालिसिस कीजिए, व्हाट इज योर प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। जब आपको प्रोजेक्टेड कॉस्ट पता चल जाता है, फिर उस कॉस्ट को कॉम्पिटिटर के कॉस्ट के साथ कंपेयर कीजिए कि जो कॉस्ट आपने कंप्यूट किया हुआ है, जो प्राइसिंग आपने कंप्यूट किया हुआ है, क्या वो प्राइसिंग कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग से ज़्यादा है, कम है। 2 to 5% के बीच में अगर है तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, सर्विस आपकी बिक जाएगी। अंडरस्टैंड दिस, आपकी सर्विस बिक जाएगी, रेंडर्ड हो जाएगी, प्रोडक्ट भी आपका बिक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 to 5% में। बट इफ देयर इज ए डेविएशंस ऑफ 25%, 30%, 40%, देन दिस इज ए प्रॉब्लम। इसका मतलब जो आपने प्राइसिंग कंप्यूट किया हुआ है, प्राइसिंग आपने ओवर प्राइस में डाल दिया है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग के बेसिस पे आप अपने प्राइसिंग को रिवाइज कीजिए और जो आपने कॉस्ट को फैक्टर किया हुआ है उसको कम कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर क्या करते हैं, दे स्टार्टेड टू चार्ज आउट ऑल दिस कॉस्ट, द डायरेक्ट कॉस्ट, द इनडायरेक्ट कॉस्ट, रेंट, मेंटेनेंस, बिल्डिंग, पानी, बिजली, बत्ती, सब कुछ उसके ऊपर डाल देते हैं। अरे अगर आप इस चीज को समझिए, सब कॉस्ट अगर आप प्राइसिंग के ऊपर डाल देंगे तो आपका प्राइसिंग ओवर प्राइस पे चला गया ना। जब आपको प्राइसिंग ओवर प्राइस पे चला गया तो कौन सा कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, सर्विस को रेंडर करेगा। So you have to see genuinely that what kind of cost that you are offering in the pricing competitions, and that is more important. And while you are able to drive that, this is going to help you. जब कॉम्पिटिटर के प्राइस के साथ में आप उसको कंपेयर करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपकी प्राइसिंग और कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग क्या है। और जब आपको प्राइसिंग पता चल गई, कॉम्पिटिटर के प्राइस के साथ में एनालिसिस कर लिया, फिर आप जो डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स है उसको आप यूज कीजिए, अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कीजिए, अपने सर्विस को डिलीवर करना शुरू कीजिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना शुरू कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर द स्टेप दैट यू हैव टू फुलफिल इन योर बिजनेस। Pricing is important part. Pricing is the determinable factor. Pricing is the make it or a break it factor. इस चेन को समझना पड़ेगा एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर। पर्टिकुलरली आई एम फोकसिंग टू द स्टार्टअप्स, एसएमई, एमएसएमईज।
ये इंपॉर्टेंट है स्मॉल माइक्रो और मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए। जब आप प्राइसिंग्स बनाते हैं, प्राइसिंग्स में क्या कॉस्ट फैक्टर करता है कि आपका प्राइसिंग कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग से ज़्यादा है या कम है, ये आपको देखना पड़ेगा। प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने गलत प्राइसिंग किया आपकी सेल्स कभी जनरेट नहीं हो पाएगी। एंड व्हाट हैपन व्हेन यू रन योर बिजनेस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल तक आपने रन किया, प्राइसिंग के वजह से आप सेल्स नहीं कर पा रहे, सेल्स की वजह से आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहे, और फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इवेंचुअली यू विल स्टार्ट टू शट डाउन योर बिजनेस एंड से ओके दिस इज नॉट फॉर मी, and I think that the product do not have more values. I think that the time is wrong. I think this is not the right time to do the business. I have to switch and start to do the job. This kind of the questions that will become in your mind, and आप उसका आंसर देते रहेंगे, क्योंकि आपने फाउंडेशनल एक्टिविटीज को सही से नहीं किया। फाउंडेशनल एक्टिविटीज को आपने सही से नहीं किया, आपने प्राइसिंग सही से कंप्यूट नहीं किया, आपने कॉम्पिटिटर के साथ प्राइसिंग को वैरी नहीं किया, आप अपने प्राइसिंग को देखा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट उसमें फैक्टर कर दिया, आपका ओवर प्राइसिंग हो गई, कस्टमर आपके बेस में बना नहीं, कस्टमर एक्सपीरियंस आपने लिया नहीं, सेल्स हुआ नहीं, प्रॉफिट बना नहीं, आपका बिजनेस शॉट डाउन के कैटेगरी पे खड़ा हो गया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बीइंग ए बिजनेस ओनर or the entrepreneur, your first decision should be that how to create the price, and while you are creating the price, what are those important factors that you have to take care in your pricings. That is important. So it is going to help you to build up the right opportunity with the help of right pricing to be able to develop more revenues and create more growth, more profit. So start कीजिए, क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए आप अपने आप से एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर। व्हाई प्राइसिंग, हाउ प्राइसिंग, व्हाई प्राइसिंग, हाउ प्राइसिंग, प्राइसिंग क्यों जरूरी है और कैसे करें, प्राइसिंग क्यों जरूरी है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। कैसे करें वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्टार्ट टू यूज दिस बिकॉज दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रैक्टिस दैट इंडस्ट्रीज आर डूइंग एंड दे आर क्रिएटिंग द लार्जर अपॉर्चुनिटी, लार्जर प्रॉफिट इन देयर बिजनेस। You are missing that profit, you are missing that opportunity. Start to getting this opportunity through the help of this video and getting more opportunity to be able to develop more revenue, getting more growth, getting more profit, and that is the objective you as an entrepreneur, as a business owner set for yourself. 5 साल धंधा किया, आपने प्रॉफिट नहीं बना पाया, क्यों धंधा कर रहे हैं फिर आप? इट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ। 10 साल धंधा किए, प्रॉफिट अगर नहीं बना पाए, क्यों धंधा किया आपने? दैट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ कि 10 साल में आपने कैसा प्राइसिंग रखा, कैसा परफॉर्मेंस रखा, कैसा रेवेन्यू बनाया, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनाया। दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क यू to yourself. It is important, and if you find out the more explorations in this kind of informations, don't hesitate to comment on my chat box. Hesitate मत कीजिए। अगर आपको बिजनेस में प्राइसिंग से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, these are the questions that I am asking to the entrepreneur and the business owner. Being a business finance and the controller, this is my duty to explore those all informations to the audience, like the entrepreneur and the business owner, and the audience can be able to use these informations to be able to develop more growth in their business. ये important part है मेरा, so don't hesitate. आपको लगता है कि I have to ask some questions, you simply mention on my comment box, my chat box. I am here to support you, to guide you, to explore those all informations, and this would be happiest time for me to explore all those informations to you so that your business would be grow. If your business would grow, you would be able to create more employment, and if you are able to create more employment, I am the happiest person. I am the happiest person because the objective here is to create more and more employment through the industry, through the business channel. That is how it is important. Start कीजिए, और कहीं भी आपको लगता है कि I have to ask questions about the business strategy, about the business pricings, about the business profitability, about the business valuations, about the pricing valuations, I am here to support you. This is how
द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज। सो स्टार्ट कीजिए, अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए, अपने प्रॉफिट को ग्रो कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्राइसिंग इज द इंडिकेटर्स ऑफ योर परफॉर्मेंस, इजंट इट? प्राइसिंग इज द इंडिकेटर्स ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या करता है? प्रॉफिटेबिलिटी आपको परफॉर्मेंस को मेजर करके, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करके आपकी प्रॉफिट को बताता है कि आपका प्रॉफिट कितना। इट इज इंपॉर्टेंट। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज द एंड गोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ योर कैपेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द बिजनेस। सो स्टार्ट टू रिचार्ज योर सेल्फ बाय क्वेश्चनिंग द क्वेश्चंस व्हाई pricing, how pricing, and develop more opportunities in your business to be able to develop more revenues in your business, getting more opportunities in your business, and getting more phenomenal growth and overall profitability in your business with the help of right pricing system and standard in your business. This is Sensing signing out. Until we meet again, thank you very much.